Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 28 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक नेशन वाइड जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम की, जो कि बोला जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस साल तक और कौन से महीने में रिलीज़ किया जाएगा। तो याद रखेंगे मार्च 2024 तक एक नेशन वाइड जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। और अभी अगर आपको याद हो, हम फास्टैग की मदद से यूजिंग आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पैसे आपके वॉलेट से ऑटोमेटिकली कट जाते थे, या फिर आप इस फास्टैग को रिचार्ज करा सकते हैं। आपको पहले इस टेक्निक की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपको वेट नहीं करना पड़ता टोल पे, राइट। आपको किसी से पर्ची नहीं कटवानी पड़ती, फिजिकली पैसे देने नहीं पड़ते, ऑनलाइन डायरेक्टली आपके अकाउंट से ये पैसे कट जाते हैं। तो याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी ये जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम बाय मार्च 2024। इससे क्या होगा, एक तो भीड़ नहीं लगेगी, जल्दी काम होगा, राइट। इसी की वजह से ये लॉन्च किया गया। और यहाँ पे याद रखेंगे, अभी एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अलॉन्ग विद एएनपीआर सिस्टम। एएनपीआर क्या है? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम। चलिए, इससे क्या है, ऑटोमेटिकली कैमराज आपके नंबर प्लेट को रजिस्टर कर लेंगे एंड उसके बेसिस पे आपका टैक्स कट जाएगा। नेक्स्ट, एसआरईसी एंड काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, इनके बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ ताकि इंडिया के जो लेदर सेक्टर है ना, उसको ग्रो कर सके। यहाँ पे जो लेदर सेक्टर में आपके एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जो वर्कर्स हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात की गई। ऑलमोस्ट 1,50,000 वर्कर्स को इन द लेदर इंडस्ट्री। और ये जो एमओयू है, ये 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली क्विट ओपेक। ओपेक क्या है? ओपेक एक काउंसिल है बेसिकली, राइट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो आपके पेट्रोल को डील करते हैं, जो पेट्रोल की मोनोपोली जिन कंट्रीज के पास है, उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। और अभी किस कंट्री ने एग्जिट कर दिया है, क्विट कर दिया है ओपेक काउंसिल से? तो वो है अंगोला। 2007 से लेके अंगोला आपका ओपेक का पार्ट था, लेकिन अभी जनवरी 2024 से ये ओपेक का पार्ट नहीं रहेगा। कुछ इनके टारगेट्स थे जो पूरे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अंगोला को क्विट करना पड़ा फ्रॉम दिस ओपेक काउंसिल, करेक्ट। और इवन अंगोला का जो ऑयल आउटपुट टारगेट था वॉज रिड्यूस टू जस्ट 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे। अगर ओपेक की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ अंगोला, इन्होंने ओपेक को क्विट कर दिया है जनवरी 2024 से, एंड 2007 से ये इनका पार्ट थे। अंगोला इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर आफ्टर अफ्रीका, आफ्टर नाइजीरिया। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अफ्रीका आफ्टर नाइजीरिया, करेक्ट। अफ्रीका के ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है एंड नाइजीरिया टॉप पर आता है। नेक्स्ट पर आते हैं। ओपेक की बात करें तो ओपेक आपका बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय ईरान,
इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। यहाँ के सेक्रेटरी जनरल कौन रहेंगे? हैथम एल गैस, ये कुवैत के हैं। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में रहेगा एंड ये सारी कंट्रीज इनका पार्ट रहेंगी। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च्ड ई सवर्णा, इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। तो ये ई सवर्णा जो कि एक फर्स्ट कॉर्पोरेट कार्ड रहेगा, क्रेडिट कार्ड रहेगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडसइंड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ई सवर्णा को। ये रुपे नेटवर्क पे वर्क करेगा एंड ये आपका एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड रहेगा, राइट। इसके लिए इंडसइंड बैंक ने यूपीआई फैसिलिटी को यूज करा टू लॉन्च दिस कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, करेक्ट। और ये एनपीसीआई का विजन है टू मेक आवर सोसाइटी डिजिटल। इवन यहाँ पे हम देखेंगे ई सवर्णा में आपकी कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं रहेगी, कोई भी एनुअल फीस नहीं रहेगी। 8 डोमेस्टिक एंड 2 इंटरनेशनल फ्लाइट लॉन्चेस विजिट आपको मिलेंगे। सरचार्ज मिलेगा ऑफ फ्यूल 1% एंड इंडस बैंक यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड करता है अप टू 15 लाख इन केस ऑफ काउंटरफीट फ्रॉड हैपनिंग ऑन द कार्ड। एनपीसीआई की यहाँ पे बात करें तो एनपीसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? दिलीप एस बे। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। 2008 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इंडसइंड बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुमंत कथपालिया, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमंत कथपालिया, हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसको एस्टैब्लिश किया गया 1994 में। नेक्स्ट पर आते हैं, किस बैंक ने अनवेल किया एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो याद रखेंगे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराने को कस्टमर्स के लिए यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लॉन्च किया गया, राइट। पहली चीज याद रखेंगे यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, ये सारी यहाँ पे लॉन्च की गई। अगर बात करें सबसे पहले आ जाती है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। ये पीएम स्वनिधि एंड डिजिटल मुद्रा स्कीम के अंडर इसको लॉन्च किया गया ताकि जो एमएसएमईज हैं उनको लोन लेने में अप टू 10 लाख रुपीज ईजी हो सके। दूसरा याद रखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ही वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया, राइट, ताकि EFDs जो कि है इलेक्ट्रॉनिक FDs एंड RFD रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट्स, ये फैसिलिटी ऑनलाइन ही आपको प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। फिर एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसके अंदर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो MD एंड CEO कौन रहेंगे? AS राजीव। हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र में, इस्टेब्लिश किया गया इसको 1935 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने रिलीज किया ड्राफ्ट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर एपीज अंडर FEMA एक्ट, फेमा एक्ट ऑफ 1999। तो याद रखेंगे आरबीआई ने एक नया ड्राफ्ट रिलीज किया लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइज्ड पर्संस अंडर फेमा एक्ट ऑफ 1999। इसकी बात करें तो यहाँ पे कमेंट्स, फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क आर इनवाइटेड फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स टिल 31 जनवरी 2024। और इसका गोल क्या रहेगा? जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए टू द इंडिविजुअल्स, टूरिस्ट, बिजनेसमैन, उसको और बेटर करा जा सके। एंड इससे के रिलेटेड ही यहाँ पे जो भी आपकी फीडबैक है, कमेंट्स है, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी एक साइन किया लाइन ऑफ क्रेडिट LOC वर्ल्ड बैंक के साथ ताकि रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे उसको ग्रो करा जा सके। और इवन याद रखेंगे रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमने कल ही पढ़ा है कि गुजरात जो स्टेट है ना आपकी, इसने टॉप किया है इन रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी रिसेंटली $165 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है, किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ, ताकि जो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप किया जा सके, उसको और एनहेंस किया जा सके। इवन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ये $165 मिलियन ये लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराई गई है, इसके लिए क्या होगा? ये अमाउंट यूज़ किया जाएगा ताकि आपके जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं, वायर्स हैं, केबल्स हैं, जो उसका ढांचा बनेगा वो सारा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, उसमें ये पैसा यूज़ किया जाएगा। फिर यहीं पे आप देख सकते हैं इन दिसंबर 21, 2023 को एसबीआई ने साइन किया 200 मिलियन यूरो, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट विद यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक टू सपोर्ट द क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो ये भी याद रखेंगे। तो दो चीज हो गई एसबीआई की, 200 मिलियन यूरो विद यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और $165 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट विद वर्ल्ड बैंक। किसके लिए? सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एटीजीएल। एटीजीएल क्या है? अडानी टोटल गैस लिमिटेड। इन्होंने किसके साथ अभी टाई अप करा ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है उस कंपनी का उसको रिड्यूस किया जा सके? तो वो है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट का जो कार्बन फुटप्रिंट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स अपने वेयर हाउसेस में स्टोर करते हैं फिर उनको डिलीवर करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे बनता है उसको रिड्यूस करने के लिए इनके बीच में एमओयू साइन हुआ। अडानी टोटल गैस लिमिटेड एंड फ्लिपकार्ट के बीच में ये एमओयू साइन किया गया ऑन डीकार्बनाइजिंग फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन। ठीक, मार्क करके चलेंगे। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, राइट। अडानी टोटल गैस लिमिटेड इनको अलग अलग जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो क्लीन फ्यूल ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी, जैसे नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारी प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट,
अब आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। सबसे पहले याद रखेंगे, अगर हम लिटरेरी अवार्ड्स की बात करते हैं ना, इंडिया में लिटरेरी अवार्ड्स में टॉप पर कौन सा होता है आपका? ज्ञानपीठ अवार्ड, राइट। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, राइट। तो सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इंडिया का कौन सा है? साहित्य अकेडमी अवार्ड। और अभी रिसेंटली साहित्य अकेडमी अवार्ड के विनर्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जिसमें से एक आपकी इंग्लिश भी होती है, ये भी याद रखेंगे, करेक्ट। एंड द विनर्स ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इंक्लूड 9 बुक्स ऑफ पोएट्री, 6 नॉवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 3 एसेज एंड 1 लिटरेरी स्टडी, जिसमें इंक्लूड की जाती है। फिर ये जो अवार्ड दिए गए ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड, याद रखेंगे, एक आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माधव कौशिक, राइट, जो कि प्रेसिडेंट है साहित्य अकेडमी अवार्ड के, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर यहाँ पे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जो विनर्स हैं उनको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज प्रोवाइड कराया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे याद रखेंगे, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स पहली बार कब दिया गया था? जो पहला अवार्ड था 1955 में पहली बार दिया गया था। और साहित्य अकेडमी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। तो सेबी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रमोद अग्रवाल एज द बीएससी चेयरमैन। तो बीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है? प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल एक आईएएस ऑफिसर हैं ऑफ 1991 बैच ऑफ मध्य प्रदेश कैडर। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? एसएस मुद्रा को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ बीएससी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। अभी इंडियन नेवी के द्वारा एक आईएनएस को कमीशन किया गया इन मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है। और ये कौन सा आईएनएस है? आईएनएस इंफॉल। इसी को हम बोलते हैं यार्ड 12706। मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया, राइट। ये थर्ड ऑफ द फोर्थ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है अंडर द प्रोजेक्ट 15B ऑफ विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, जो कि अभी डिजाइन किया गया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, डेवलप किया गया, बिल्ट किया गया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। अगर पूछा जाए डिजाइन किसके द्वारा करा गया था, तो ये डिजाइन किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, राइट। और ये 75 इंडिजिनाइजेशन है इसमें। ठीक है, चलिए याद रखेंगे कहां पे कमीशन किया गया इसको कमीशन किया गया एट नेवल डॉकयार्ड, जो कि मुंबई, महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। तो अभी याद रखेंगे इसरो के द्वारा एक बुक रिलीज की गई, फीस्ट सॉफ्टवेयर, राइट। फीस्ट सॉफ्टवेयर नाम की एक बुक अभी रिलीज की गई है, रिटन बाय FEA एक्सपर्ट्स ऑफ VSSC क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, राइट। ये इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। इनके द्वारा अभी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, मतलब कैसे जो डिसीजंस होते हैं उनका फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट होता है, और जो रियल टाइम सिनेरियो में हम फ्यूचर्स की चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकें, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें, इसके लिए ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर को लॉन्च किया गया, इसका फीस्ट सॉफ्टवेयर। और इसी के लिए यहाँ पर एक बुक रिलीज की गई है इसरो के द्वारा, जो कि लिखी किसके द्वारा गई है? FEA एक्सपर्ट्स ऑफ VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। फीस की स्पेलिंग देख लेते हैं एक तो, और फीस की फुल फॉर्म फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर। ये बेसिकली क्या है? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लॉन्च किया गया, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा स्प्रिंजर पब्लिकेशंस के द्वारा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। तो ओयो ने भी पार्टनर किया खेलो इंडिया के साथ, ताकि जो भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं एंड वो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर ओयो ने पार्टनर किया है खेलो इंडिया के साथ। अगर मैं बात करूं, पहला पैरा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ था? अभी न्यू दिल्ली में हुआ था लास्ट मंथ ही, ठीक। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड दिव्यांगन काला मेला के साथ किन्होंने टाई अप किया? ओयो कंपनी ने भी टाई अप किया, और ओयो अहमदाबाद गुजरात बेस्ड कंपनी रहेगी। इवन ओयो ने पार्टनर किया है व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन के साथ, एज वेल एज जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अदर NGOs हैं, जो कि आपके डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की हेल्प करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वेरियस फैसिलिटीज, वेरियस सर्विसेज उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने स्पोर्ट्स में अपनी लाइफ को और बेटर कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। तो वीर बाल दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। इस बार इसका सेकेंड एडिशन ऑब्जर्व किया गया है वीर बाल दिवस का। वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है टू पे ऑनर एंड ट्रिब्यूट टू द सेक्रीफाइस ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, जो कि 3rd एंड 4th सन रहेंगे ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। और गुरु गोबिंद सिंह ये 10th एंड लास्ट सिख गुरु थे, करेक्ट। एंड 2023 में 26 दिसंबर को सेकंड टाइम हमने ऑब्जर्व किया वीर बाल दिवस। इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, फर्स्ट इंटरनेशनल वीर बाल दिवस भी ऑब्जर्व किया गया अभी 2023 में। USA, UK, न्यूजीलैंड, UAE एंड ग्रीस में जो भी आपके सिख्स का डायस्पोरा है, वहां पे जो कम्युनिटी है, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया फर्स्ट इंटरनेशनल वीर बाल दिवस। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस। 2023 में 27 दिसंबर को हमने ये ऑब्जर्व किया एंड इसकी प्रिवेंशन के लिए पहले से प्रिपेयर रह सकें एंड प्रिपेयरनेस के साथ साथ पार्टनरशिप भी हो सके विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट कंट्रीज, ताकि अगर पैंडेमिक आता है, एपिडेमिक आता है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रह सकें। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 दिसंबर को। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? ये 2020 में, और इस बार चौथा एडिशन हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस का। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़, तो अभी तानसेन समारोह हमने ऑब्जर्व किया। 99th वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल रहेगा, ग्वालियर में ऑब्जर्व किया गया था, मध्य प्रदेश में। एंड यहाँ पर याद रखेंगे इंडिया के जो भी दिग्गज प्लेयर्स हैं म्यूजिक, आपके म्यूजिक से रिलेटेड हैं, राइट, उनको वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इन दिस म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि 99th वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे यहाँ पर फोकस रहता है। ठीक, ये ऑब्जर्व किनकी मेमोरी में किया जाता है? जिनको हम फादर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से जानते हैं। कौन है वो है मियां तानसेन। इनको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? रामतानु मिश्रा जी, राइट। मियां तानसेन तो इनको फेमसली बोलते हैं, पर असली नाम क्या है इनका? रामतानु मिश्रा जी, करेक्ट। तो जो कि फादर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक है, इनकी मेमोरी में हम ये ऑब्जर्व करते हैं तानसेन समारोह, और ये 99th वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल था जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक, याद रखेंगे। तो क्या है? तानसेन समारोह ग्वालियर में हुआ। मियां तानसेन जो कि फादर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, रामतानु मिश्रा, इनकी मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है। एंड आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे इनवाइट किए जाते हैं टू गिव देयर परफॉर्मेंस। टेक मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड अ रिनोन्ड इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित गणपति भट्ट, ये कर्नाटका से हैं, इनको कन्फर किया गया तानसेन सम्मान 2022 से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इंट्रोड्यूस किया नेशन वाइड जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम बाय मार्च 2024। SREC एंड काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, इन्होंने साइन किया एक MOU टू स्ट्रेंथन इंडियन लेदर सेक्टर। अंगोला ने क्विट किया ओपेक को आफ्टर डिसएग्रीमेंट्स ओवर प्रोडक्शन टारगेट्स। इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया ई7 जो कि इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड रहेगा रुपे नेटवर्क पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अनवेल किया कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ताकि कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सके। RBI ने रिलीज किया ड्राफ्ट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर APs अंडर फेमा 1999। SBI ने साइन किया $165 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट विद वर्ल्ड बैंक फॉर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स। एंड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स में कौन सी स्टेट ने टॉप किया? गुजरात ने। ATGL ने एक MOU साइन किया फ्लिपकार्ट के साथ ताकि जो इनका कार्बन फुटप्रिंट है इन कंपनी का, फ्लिपकार्ट का, उसको रिड्यूस किया जा सके। देन साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के विनर्स को अनाउंस किया गया एंड ये अवार्ड 24 इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है इंक्लूडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, सेबी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रमोद अग्रवाल एज द BSE चेयरमैन एंड SS मुंद्रा को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने कमीशन किया INS इम्फाल को इन मुंबई महाराष्ट्र। मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। इसरो ने रिलीज की एक बुक ऑन फीस सॉफ्टवेयर जो कि FEA एक्सपर्ट्स के द्वारा ऑफ इसरोस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा इसको लिखा गया है। ओयो ने पार्टनर किया फिर खेलो इंडिया के साथ ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके, राइट। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे हेल्प करने का काम करेंगे इन दोनों के बीच में जो ये MOU साइन हुआ। फिर वीर बाल दिवस का सेकेंड एडिशन 26 दिसंबर को, और सेकेंड एडिशन था इसका, और पहला इंटरनेशनल वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया गया। देन इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस 27 दिसंबर को। तानसेन समारोह का 99th वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो ये है तानसेन समारोह अभी ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। Which of the following personalities has have won the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2023 by Royal Swedish Academy of Science? तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से किनको सम्मानित किया गया ये पूछा गया है। तो वो रहेंगी कैटलिन कैरिको जो कि हंगरी से बिलोंग करती हैं, एंड्रू वीसमैन जो कि USA से बिलोंग करते हैं। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया अभी नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से, मार्क करके चलेंगे। एंड इन्होंने एक mRNA वैक्सीन की डेवलपमेंट की थी फॉर कोविड-19, राइट। कोविड-19 के लिए वैक्सीन mRNA वैक्सीन इन्होंने डेवलप की थी एंड इसी के लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी से सम्मानित किया जाएगा। और याद रखेंगे कैटलिन कैरिको जो ये हंगरी से बिलोंग करती हैं, ये 13th वीमेन बनी जिनको सम्मानित किया जाएगा नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी से। नेक्स्ट, नेम द इंडियन पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन। तो वो है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ये है काफ़ी फेमस ऑथर हैं, एक फिलेंथ्रोपिस्ट हैं एंड ये चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की, राइट। एंड इनको याद रखेंगे ये वो पहली वीमेन बनी है जिनको ऑनर किया गया ग्लोबल इंडिया अवार्ड से बाय द कनाडा इंडिया
फाउंडेशन, एंड दोनों कंट्रीज के बीच में जो उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर से जो ग्रोथ लाई है, जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, उसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। एंड इस अवार्ड के साथ साथ एक $50,000 का अमाउंट भी इनकी मनपसंद जो भी चैरिटी होगी उसको यहाँ पे डोनेट किया जाएगा। नेक्स्ट, which of the following personalities have been recently awarded with 2023 Nobel Prize in Physics by the Royal Swedish Academy of Science? तो कौन है वो जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया? तो एनी व्हीलर फ्रांस से, फ्रेंच क्रॉसर हंगरी से एंड पियरी अगोस्टिनी फ्रांस से। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में। करेक्ट। और रीजन क्या था? फॉर द इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मेथड डेवलप करा जो कि जनरेट करता है एटोसेकेंड पल्स को ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। तो जनरली इतने डीप में नहीं जाएंगे, बस याद रखेंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से किनको सम्मानित किया गया? इन तीनों को। और एना व्हीलर याद रखेंगे, ये 5th वीमेन बन गई हैं इन द हिस्ट्री जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित करा गया। Name the personality from India along with his team member who has recently won 2023 IG Nobel Prize under the Mechanical Engineering category। ये IG Nobel Prize क्या होता है बेसिकली कि पहले तो लोगों की जो डिस्कवरी है, इनोवेशन है, उस पर पहले लोग हंसते हैं, राइट, टू ऑनर द अचीवमेंट्स जिन्होंने, जैसे मान लो काफ़ी पहले कि इन्होंने कोई अचीवमेंट करी, राइट, उन पे पहले उन्होंने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन विद टाइम लोगों को समझ आया कि अरे नहीं, ये तो हंसने वाली बात नहीं थी, बल्कि इन्होंने तो कुछ जेन्युइन चीज़ को डिस्कवर किया एंड फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए ये IG नोबेल प्राइज से सम्मानित करा जाता है लोगों को। एंड इस बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में अनूप राजप्पन को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद दिस नोबेल IG नोबेल प्राइज से, ठीक है, अंडर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी। नेक्स्ट, इन सितंबर इंडिया ने वन किया भी बिड टू होस्ट द 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। कहाँ पर? तो ये कहाँ होस्ट किया जाएगा? इंडिया में होस्ट किया जाएगा, राइट। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट इंडिया में 17वां एडिशन होगा। किस साल में जाके होस्ट किया जाएगा? 2027 में, मार्क करेंगे। एंड न्यू दिल्ली में होगा ये। एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे इंडिया के साथ स्विट्जरलैंड एंड UAE ने भी बिड लगाया था, लेकिन यहाँ पे इंडिया विजेता रहा। नेक्स्ट, which of the following villages have been selected as the best tourism village of India 2023 by the Ministry of Tourism? तो वो रहेगा 2 विलेज, एक तो है कृतेश्वरी जो कि वेस्ट बंगाल में है एंड विश्वनाथ घाट जो कि असम में है। ये दोनों विलेजेस अभी याद रखेंगे सेलेक्ट की गई हैं एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 बाय मिनिस्ट्री ऑफ। वो कौन से इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनको अभी नेशनल मेडल ऑफ साइंस एंड नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय प्रेसिडेंट ऑफ USA जो बाइडन? तो सुब्रा सुरेश, इनको सम्मानित किया गया नेशनल मेडल ऑफ साइंस से, एंड अशोक गडगिल, इनको सम्मानित किया गया नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड से। नेक्स्ट, which company has recently won Mahatma Awards 2023 for corporate social responsibility excellence in community initiative? तो वो है UST। ये आपका महात्मा अवार्ड्स किस लिए दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है कि जो वर्ल्ड की जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबली, जैसे पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, इनके खिलाफ जो वर्क कर रहा है, राइट, जो कंपनी इनके लिए वर्क कर रही है अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीलेंस कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, वो रहेगी UST। एंड ये UST कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज है इन दीज इनिशिएटिव्स एंड लोगों की हेल्प कर रही है, इसीलिए इनको महात्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीलेंस इन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। इन अक्टूबर जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनके द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, जिसको हम निशान के नाम से भी जानते हैं, इससे सम्मानित किया गया किसको? 3rd बटालियन ऑफ द डैश रेजिमेंट। तो कौन सा, किनको सम्मानित किया गया? 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट को यहाँ पे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड क्या है? बेसिकली ये अवार्ड किसी बटालियन को, किसी यूनिट को, किसी नेवल शिप को, किसी हेलीकॉप्टर को या किसी एयरक्राफ्ट को दिया जाता है जो उनका एक्सीलेंस सर्विस रिकॉर्ड रहता है इन इंडिया ड्यूरिंग वॉर या ड्यूरिंग पीस टाइम। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है उससे उसको सम्मानित किया जाता है। तो वो है आपका प्रेसिडेंट्स कलर, और इस बार 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट को यहाँ पे सम्मानित किया गया। हाउ मैनी आर्टिस्ट हैव रिसीव्ड संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड 2022 फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी? तो इनके द्वारा कितने 84 इंडिविजुअल्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया। ये उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से, उनको सम्मानित किया जाता है कि जो 75 ईयर्स अबव हो चुके हैं जो आर्टिस्ट, राइट, एंड उनको अभी तक कोई भी और अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है इन सो फार। इसमें से 70 मैन थे एंड 14 वीमेन थी। नेक्स्ट, National Medical Commission of India was awarded the recognition status by the World Federation for Medical Education for a period of dash years with immediate effect.
तो याद रखेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया को भी 10 साल तक एक विद इमीडिएट इफेक्ट रिकॉग्निशन मिला है ऑफ द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। या इससे क्या होगा, 706 जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है ना, उनको अब एक्रेडिशन मिल जाएगा कि वर्ल्ड वाइड वो अब अपने मतलब पूरे ग्लोबली उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड बाहर से बच्चे यहाँ आके पढ़ सकते हैं एज वेल एज यहाँ के बच्चे दूसरी कंट्रीज में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिसिन को। नेम द पर्सनैलिटी हु विल बी कन्फर्ड विद द हार्मनी फाउंडेशंस 19th मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस इन नवंबर 2023। तो वो हैं नोबेल पीस प्राइज से किनको सम्मानित किया गया था अभी, जो ईरानियन वीमेन के राइट्स के लिए वर्क कर रही हैं और जो अभी जेल में है, नरगिस मोहम्मदी। इनको अभी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी अभी एक सेरेमनी हुई थी 19th एडिशन ऑफ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस की सेरेमनी 26 नवंबर को, उसके दौरान इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। Next, name the regulatory body of India that has been recently awarded with ISAR honors by UNCTAD working group on ISAR। ISAR है International Standards for Accounting and Reporting। तो किनको सम्मानित किया गया, ICAI को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को यहाँ पे सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम। ये अबू धाबी में हुई थी इन यूएई। इसके दौरान यहाँ पर आईसीआई को सम्मानित किया गया ISAR ऑनर से। एंड ये जो 8th एडिशन था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम का, याद रखेंगे इसकी एक थीम भी थी। थीम क्या रहेगी, इन्वेस्टिंग इन सोशल डेवलपमेंट और इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Next, name the personality who has been recently facilitated with 2022 Center on Legal Profession Award for Global Leadership by the Harvard Law School Center of Harvard University in USA। तो वो है इंडिया की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, राइट। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है विद द सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेम द एक्टर हु विल रिसीव सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में होगा। तो कौन है वो है माइकल डगलस, राइट। माइकल डगलस ये एक अमेरिकन एक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं एंड इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ड्यूरिंग द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर होगा, गोवा में होगा। 20 से 28 नवंबर के बीच में ये हो चुका है, उसके दौरान इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट फॉर एयरपोर्ट्स फॉर सितंबर, ये अभी सीरियम के द्वारा रिलीज की गई और इसमें बताया गया कि वो कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट रहा फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के लिए। तो वो है केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैंगलोर कर्नाटका में रहेगा ये मार्क करेंगे। एंड ये मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट रहा पिछले 3 महीने के लिए कॉन्सिक्यूटिवली, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। तो यह है केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इवन ये इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, इतना ब्यूटीफुल इसका इंटीरियर है, आप देखेंगे इवन वर्ल्ड के जो CEO हैं, बिजनेस मैनेजर, वो यहाँ पर आते हैं तो इसकी बहुत सराहना करते हैं ऑन एक्स प्लेटफॉर्म, जो कि फॉर्मली ट्विटर था। नेक्स्ट, नेम द विलेज ऑफ इंडिया, जिसको अभी रिसेंटली फीचर किया गया इन द 3rd एडिशन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज लिस्ट बाय UNWTO। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सी रहेगी, तो वो है ढोरडो विलेज, राइट, गुजरात की बेस्ट टूरिज्म विलेज। अगर मैं बात करूं बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए, बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए कौन सी विलेज रहेगी, वो है माडला विलेज, राइट, माडला विलेज। और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो दोनों अलग अलग हैं, बेस्ट टूरिज्म विलेज ढोरडो विलेज और बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए माडला विलेज, राइट। और ये 3rd एडिशन था बेस्ट टूरिज्म विलेज लिस्ट का, जो UNWTO के द्वारा रिलीज की गई। नेक्स्ट, विच मिलिट्री स्टेशन इन इंडिया हैज रिसेंटली बैक्ड विद द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड। तो बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, वो है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में। और यहीं पर आपसे मैं पूछ लूं, ये तो था बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन, अगर पूछा जाए बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन कौन सा रहा, बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन रहा है आपका बीकानेर मिलिट्री स्टेशन, जो कहां पर है, राजस्थान में, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला 5 ये होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, सभी का पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड द हेल्थ एम्बेसडर फॉर सलाम बॉम्बे फाउंडेशन। दूसरा, विच स्ट्रेट दैट वाज रिसेंटली न्यूज ऑल्सो नोन एज गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक। तीसरा, व्हाट टर्म हैज बीन यूज्ड फॉर द इरिडिसेंट क्लाउड्स, जो कि अभी स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न इंग्लैंड एंड वेस्ट मिडलैंड्स में स्पॉट किए गए थे। चौथा, तलई एंड नसीर, ये भी क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि किस कंट्री के द्वारा अनवेल की गई, और हमने परसों ये क्वेश्चन करा है।
फिफ्थ, हु हैज़ बिन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ओडीआई सीरीज। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा सेशन लगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.